Hello students, today we will start next chapter, how many squares. The chapter is about area and perimeter. Class 5, subject maths. Perimeter. So students, before we start the chapter in textbook, let us know about the basic concepts of this chapter. So first is perimeter. What is perimeter? When your family put a new fence around our home, how will they know how much fencing they need? जब आपका घर है, मान लीजिए, उसके चारों तरफ ये फेंसिंग करनी है, जैसे डॉटेड लाइन आपको दिख रही है ना, फेंसिंग करनी है. फेंसिंग होती है बाउंड्री. फेंसिंग होती है जैसे कई लोग बाड़ लगा देते हैं, कई लोग दीवार से घर के चारों तरफ दीवार खींच देते हैं, ठीक है, तो उसे बोलते हैं फेंसिंग. तो अगर आपको अपने घर के चारों तरफ इस तरह से फेंसिंग करनी है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कितनी बड़ी फेंस चाहिए या कितनी लंबी फेंस होगी? उसके लिए आप क्या करेंगे? तो घर के चारों तरफ की बाउंड्री का टोटल लेंथ निकाल लेंगे, ठीक है. तो बाउंड्री की जो टोटल लेंथ होती है, द टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ शेप और सरफेस इज नोन एज पेरीमीटर. पेरीमीटर इज द डिस्टेंस अराउंड द आउटसाइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट. आउटसाइड, किसी ऑब्जेक्ट की बाहर की साइड की जो टोटल डिस्टेंस है, दैट इज पेरीमीटर. पेरीमीटर इज रिपोर्टेड एज द टोटल नंबर ऑफ लीनियर यूनिट्स. बाहर की बाउंड्री लाइन जो है, लीनियर यूनिट मतलब लाइन, बाउंड्री लाइन की टोटल यूनिट्स कितनी है, दैट इज पेरीमीटर. यूनिट्स मतलब लेंथ, वो मीटर्स में भी हो सकती है स्टूडेंट्स, सेंटीमीटर्स में भी हो सकती है, किलोमीटर्स में भी हो सकती है. अगर हम किसी सिटी की हम आउटलाइन कर रहे हैं, ठीक है, या तो वो किलोमीटर्स में भी हो सकती है. इसीलिए हमने इसको यहाँ यूनिट्स कहा. दैट्स व्हाई वी यूज्ड यूनिट. यूनिट में भी सेंटीमीटर और मीटर और किलोमीटर. ओके, नेक्स्ट इज, सो द शेप में बी रेगुलर और इरेगुलर. दो तरह की शेप्स होती हैं, रेगुलर एंड इरेगुलर. रेगुलर शेप्स आपने अब तक पढ़ी हैं, ट्रायंगल, सर्कल, rectangle, square, hexagon, all these are regular shapes. Okay, they have definite number of sides, definite angles, and there are some irregular shapes also. You can see this first shape, this is irregular. Okay, it don't have equal sides, so this is an irregular shape. Let us find the perimeter of this shape. Each square इज इक्वल टू 1 यूनिट. इसमें जितने भी ये स्क्वायर्स बनाए गए हैं, ये 1 यूनिट के इक्वल हैं. तो जब इसकी बाउंड्री हम काउंट करेंगे, तो बाउंड्री कैसे काउंट करेंगे? बाउंड्री पर जितने स्क्वायर्स टच कर रहे हैं उनको हमने काउंट करना है कि बाउंड्री पर कितने स्क्वायर्स टच कर रहे हैं, ठीक है. लेट अस सी, काउंट द नंबर ऑफ साइड्स. ओके, so these are 1 square is there, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, then 12 13 14 15 16 17. Like this we can count the number of squares touching the boundary, and that are 24. If so the boundary of the shape is 24 square, the 24 units. Okay, it is length, so 24 units. 1 square is equal to 1 unit, so 24 units are touching the boundary. So perimeter of the shape is dash units. What will be the answer? 24 units. Okay, so next let us try this one, this shape also. Okay, we will have count the number of sides to determine the perimeter of this flat shape.
This is a flat shape but irregular shape, and we have to count the number of sides of the squares touching the boundary of the shape. The perimeter is equal to, so we have to count the number of squares on boundary lines. So these are 1, 2, 3, 4, 5, 6. You can understand this concept by seeing these numbers. The numbers are written on the boundary where the squares are touching. Okay. So how many units are there? 12. Okay. Next is, which shape is this? This is a rectangle. Perimeter of a rectangle. Perimeter of a figure is the distance all the way around the figure. अगर हम उस फिगर के चारों तरफ घूमें तो उसके चारों तरफ का जो डिस्टेंस है, उसकी बाउंड्री लाइन का जो डिस्टेंस है, दैट इज नोन एज perimeter. So we have this rectangle. It have 4 sides. Its length is 7 and breadth is 4 centimeters. So we have to find out the perimeter. Perimeter of this shape will be 7 meter. हम क्या करेंगे, चारों साइड्स को प्लस कर देंगे, 7 + 4 + 7 + 4 and that will be 22 सेंटीमीटर्स. तो स्टूडेंट्स, हर एक में इस तरह से सबको जोड़ना ज़रूरी नहीं है. इसका एक फॉर्मूला भी देखिए यहाँ से बन रहा है. 7 को कितनी बार ऐड किया हमने? 2 टाइम्स. इसका मतलब 2 बार लेंथ को ऐड किया है और 2 बार ब्रेड्थ को ऐड किया है हमने. तो 2 लेंथ + 2 ब्रेड्थ इज द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल. 2 लेंथ + 2 ब्रेड्थ. तो जो लेंथ है उसको 2 टाइम्स कर देंगे. 7 × 2 = 14. 2 ब्रेड्थ 4 × 2 = 8 and 14 and 8 22. That will be the same answer. तो इसी से हमने फॉर्मूला बना लिया कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? 2 लेंथ्स + 2 ब्रेड्थ्स. ओके. सो नेक्स्ट, दिस इज अ स्क्वायर with sides 4 centimeters. So we have to find out the perimeter of this square. Perimeter of the square is equal to, अब इस स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होगा? 4 साइड्स हैं और 4 सेंटीमीटर के, तो 4 + 4 + 4 + 4 सेंटीमीटर, दैट इज 16. अब इससे हम फॉर्मूला भी नहीं बना लेंगे ना, हर स्क्वायर का सेम ही फॉर्मूला होगा. हमने चारों साइड्स को प्लस किया है, साइड + साइड + साइड + साइड, और चारों साइड्स की वैल्यू तो सेम होती है स्क्वायर में. तो हम इसको 4 × साइड्स भी कह सकते हैं. 4 को 4 टाइम्स प्लस कर लो या फिर 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर लो. That will be the answer will be the same, that is 16 centimeters. So perimeter of a square is 4 × side. You have to learn the formula. फॉर्मूला भी आपको लर्न करना है बेटे. रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 लेंथ + 2 ब्रेड्थ, और स्क्वायर के पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4 × साइड. साइड्स को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. ओके. नेक्स्ट, now the next concept, area. Area is the amount of surface space that an object has. कोई भी एक ऑब्जेक्ट है वो कितनी जगह घेरता है, दैट इज द एरिया. अब एक कारपेट ही लगा लीजिए, आप अपने फ्लोर पे कारपेट बिछाते हैं, तो कारपेट की जो बाउंड्री है वो हो गया उसका पेरीमीटर. लेकिन उस कारपेट ने जितने फ्लोर को ढक लिया वो टोटल फ्लोर हो जाएगा उसका एरिया. एरिया इज रिपोर्टेड इन द अमाउंट ऑफ स्क्वायर यूनिट्स. जैसे पेरीमीटर यूनिट्स में लिखा जाता है, एरिया को हम स्क्वायर यूनिट्स में लिखते हैं. ओके. नेक्स्ट, व्हेन यू मेजर द अमाउंट ऑफ कारपेट टू कवर द फ्लोर ऑफ अ रूम, यू मेजर इट इन स्क्वायर यूनिट्स. जब हम किसी कारपेट ने कितना कवर किया फ्लोर को ये निकालते हैं तो वो स्क्वायर यूनिट्स में निकालते हैं. वुड द एरिया ऑफ योर बेडरूम और द एरिया ऑफ योर हाउस बी ग्रेटर. आपके घर में बेडरूम भी है जहाँ पर आप सोते हैं और पूरा हाउस जो है आपका, तो उनमें से कौन सा एरिया बड़ा है? यू आर राइट,
द एरिया ऑफ योर हाउस इज ग्रेटर. बिकॉज जो आपका बेडरूम है तो वो हाउस का ही पार्ट है ना, तो उसने कम जगह घेरी है, हाउस ने ज़्यादा, क्योंकि हाउस में तो किचन भी है, बाथरूम भी है, ड्राइंग रूम भी हो सकता है, स्टडी रूम भी हो सकता है, बहुत से रूम्स भी हो सकते हैं, और 1 या 2 रूम्स भी हो सकते हैं. लेकिन बेडरूम से तो पूरा हाउस हमेशा बड़ा ही होता है ना, क्योंकि उसमें बाथरूम, किचन, स्टेयर्स, मेनली ये तो होते ही हैं. तो सो द एरिया ऑफ बेडरूम इज smaller than the area of your house. So next is we have to find the surface, the area of this surface. This is irregular shape and we have to find out the area. Each square is equal to 1 unit. अब तक हमने देखना था जब हम बाउंड्री या पेरीमीटर निकालते हैं तो पेरीमीटर को कितने स्क्वायर्स टच कर रहे हैं हमने ये देखा. लेकिन अब हमने ये देखना है कि इसने कितना स्पेस लिया, कितने स्पेस को कवर किया, तो उसके लिए इसके अंदर कितने नंबर ऑफ स्क्वायर्स आए वो हमने काउंट करना है. तो देखिए, हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर, नंबर इज रिटन, देयर आर 15 स्क्वायर्स. सो द एरिया इज 15 स्क्वायर यूनिट्स. क्योंकि मैंने आपको बताया था, आई हैव टोल्ड यू दैट एरिया इज मेजर्ड इन स्क्वायर यूनिट्स. ओके, try this one. This is given. Okay, there is a shape, this is a rectangle, it has squares. Okay, it is filled with squares. So the area covered by this rectangle will be equal to the number of squares filling the shape. इस शेप में कितने स्क्वायर्स आ रहे हैं वो हम काउंट करेंगे तो इसका एरिया आ जाएगा. काउंट द नंबर ऑफ ग्रीन स्क्वायर्स टू डिटरमाइन द एरिया ऑफ द सरफेस. एंड व्हाट इज द एरिया? दैट इज 9 स्क्वायर यूनिट्स. 9 स्क्वायर यूनिट्स इज द एरिया ऑफ दिस शेप. ओके, सो स्टूडेंट्स, इससे आपको क्लियर हो गया होगा बाउंड्री मीन्स पेरीमीटर एंड द space covered in a shape is the area. Let us do these problems together. Okay, now we have two shapes. Both the shapes are swimming pools. Two neighbors build swimming pools. This is what the pool look like. दो neighbors हैं जिन्होंने स्विमिंग पूल बनाया है. ठीक है, ये दो पड़ोसियों का स्विमिंग पूल है, दोनों ने अलग अलग शेप में बनाए हैं. विच फैमिली हैज द पूल विद द बिगर स्विमिंग एरिया? तो हमें बताना है किस स्विमिंग पूल का एरिया ज़्यादा है. सो फर्स्ट स्विमिंग पूल, हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर? 8. एंड इन सेकेंड देयर आर 7. सो विच इज बिगर? स्विमिंग पूल ऑफ family A, because the area of swimming pool of family A is 8 square units and area of swimming pool of family B is 7 square units. So the area of A family's swimming pool is more. Next, now अब स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा कि एरिया क्या है. व्हाट इज एरिया? An area of a figure is the number of square units that covers the surface of the closed figure. Area हमेशा closed figure का होता है और उस closed figure ने कितनी square units को cover किया है surface पर, that is known as the area. Like this, there is a rectangle which is covered with 40 square units. So area of this rectangle is 40 square units. Now there is a, which shape is this, students? This is a rectangle. Yes. And this is square. Area of a square. If the side of this square is 3 centimeters, then what will be the area of this square? The area of the square will be 3, 3, 3. How many squares are there? 9. Area of the square is equal to side into side.
3 squares are on one side, length side, and 3 squares are on breadth side. So the area of the square is 3 into 3, that is 9. Okay, so you have to learn the formula. Area of a square is side multiply side. Whenever you have to find out the area of a square, you have to multiply the side to itself. साइड को साइड से ही मल्टीप्लाई करेंगे. जैसे स्क्वायर की साइड 3 है तो 3 को 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो उस स्क्वायर का एरिया आ जाएगा. सो नेक्स्ट इज एरिया ऑफ अ rectangle. This is a rectangle. Okay, how many squares are on boundary on breadth side? 1, 2 and 3. And how many square? So the breadth is 3 centimeters and number of squares on length side are 5, that is 5 centimeters. So students, इसका एरिया निकालने के लिए एक तरीका तो ये है कि आप स्क्वायर्स को काउंट कर लीजिए, 15 आएगा. लेकिन हर जगह तो स्क्वायर्स नहीं बने होते हैं. ठीक है, तो उसके लिए हमें एक फॉर्मूला लर्न करना होता है. तो देखिए 5, अगर हम इसको देखें तो 5, 5 एंड 5 स्क्वायर्स हैं 3 लाइन्स में. 5 3 is 15. ओके, 5 स्क्वायर्स को 3 टाइम्स प्लस करेंगे तो वो क्या आएगा 5. या तो 5 को 3 टाइम्स प्लस कर लो या 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, सेम ही होता है ना. तो यहाँ पर हम यही करेंगे, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो इससे फॉर्मूला क्या बन गया कि लेंथ को अगर ब्रेड्थ से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो एरिया होता है रेक्टेंगल का. तो हमने यहीं से इसका फॉर्मूला निकाल दिया, क्योंकि हमें 5 देखिए हर लाइन में 5 स्क्वायर्स हमें दिख रहे हैं. तो टोटल एरिया निकालने के लिए 5 + 5 + 5 करना होगा. 5 + 5 + 5 मीन्स 5 को 3 बार प्लस करना है. और किसी भी चीज़ को 3 बार प्लस करना होता है तो हम उसको 3 टाइम्स भी तो लिख सकते हैं. तो ये हो जाएगा 3 × 5, दैट मीन्स 5 × 3. और 5 × 3 क्या है? 5 इज लेंथ एंड 3 इज breadth. So area of rectangle is length into breadth. We have derived the area from this shape. 5 × 3, that is 15 square centimeters. So students, आपको ये एरिया, इसमें हमने 4 फॉर्मूले लर्न किए, 2 पेरीमीटर के, 2 एरिया के. वो हम रिवाइज कर लेते हैं. पेरीमीटर में स्क्वायर का पेरीमीटर 4 × साइड, रेक्टेंगल का पेरीमीटर 2 लेंथ 2 ब्रेड्थ. एरिया में स्क्वायर का एरिया साइड इंटू साइड एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ. सो ये फॉर्मूलाज थे. अब देखिए हमने इस पूरे चैप्टर में क्या किया. वी हैव डिस्कस्ड ओनली 2 पॉइंट्स, पेरीमीटर एंड एरिया. तो पेरीमीटर, इस पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद पेरीमीटर के बारे में आपको क्या समझ आया? पेरीमीटर इज द मेजरमेंट अराउंड द पॉलीगन. पॉलीगन मतलब कोई भी शेप हो सकती है, कोई भी एक क्लोज्ड शेप, और उसके चारों तरफ की जो मेजरमेंट है दैट इज नोन एज पेरीमीटर. और मेजरमेंट ऑफ स्पेस इनसाइड द पॉलीगन, और उस पॉलीगन के अंदर कितना स्पेस है वो होता है उसका एरिया. सो स्टूडेंट्स, दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ पेरीमीटर and area. I hope you understood the concept and enjoyed the video. Thank you.